Okay, so hello everyone. In the past video, we have already learned about the various file functions like rewind, fseek, ftell, and fua function. Now, today we will see a bitwise operator in C programming. So basically, what do we mean by operators? We have already seen in the past videos when we have learned about the different types of operators. Again, we will see what do we mean by bitwise operators available in C programming. So in arithmetic logic unit, which is within the CPU, the mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, divisions are done in bit level. To perform a bit level operations in C programming, the bitwise operators are used. So basically, whenever you want to perform addition, subtraction, multiplication, division, and different types of arithmetic operations, so every operations will be worked on individual bits. So whenever you want to perform a bitwise operation, at that time you have to use a bitwise operator. So bitwise operator are one of the type of operators like arithmetic operators, relational operators. After that, conditional operators are there. So likewise, we are having the bitwise operators in C also. So different types of bitwise operators are available, like AND operator, bitwise AND. It is represented by operator and ampersand symbol. Okay, so bitwise AND, इसको हम लोग बोलते हैं bitwise AND. After that, bitwise OR. We will use a OR symbol which is available on your keyboard, so known as bitwise OR. After that, bitwise exclusive OR. Okay, in digital circuits, in digital language, you can say this XOR gate. You already said. Okay, so bitwise XOR operations, it is denoted by this symbol. It is a power symbol जिसे बोलते हैं. After that, shifting operation, left shift operator or right shift operator. And one more bitwise operator is complement operator. So we are having different types of bitwise operator. First one is bitwise and then bitwise or, exclusive or, left shift operator, right shift operator, and complement operator. That is tilde symbol, which is available on your keyboard. You have to use a tilde symbol to find out the complement of a particular number. So we will see one by one. Now, first of all, we'll see a bitwise AND operator. The output of bitwise AND is 1 if the corresponding bit of two operands is 1. You already know about the AND gate. In digital circuits, you already see bitwise. You already learn about the AND gate, NOR gate, NOT gate, OR gate. Likewise, so same operations we are going to perform here also. So AND, bitwise AND, it means that when both the inputs are 1, that means output are 1. Both if one of the input is 0, that means output is 0. Suppose one example will see, there is one decimal value 12. 12 का बाइनरी में ये दिया हुआ है, ये आपका बाइनरी वैल्यू है 0001100 in binary. Similarly, there is another decimal value 25. 25 का ये बाइनरी है, ठीक है, 000110001. Now, if you want to perform a bitwise operation and that to be AND operation, आप AND operation perform कर रहे, that means there is an AND symbol. Suppose if you want to perform 12 and 25, 12 का पहले आपने बाइनरी में कन्वर्जन किया, आफ्टर दैट 25 का बाइनरी में कन्वर्ट किया. नाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म अ बिटवाइज ऑपरेशन. बिटवाइज एंड आपको परफॉर्म करना. सो बिटवाइज एंड अगर परफॉर्म करोगे, सो देयर इज 0, देयर इज 1. सो 0 1 0 1, वन इनपुट 0 है, अनदर इनपुट 1 है, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द वैल्यू इज 0, योर आउटपुट इज 0. both the values are 1, that means both the inputs are 1, your output is 1. now सेकेंड में 0 0 है, तो आपको आउटपुट में भी 0 मिलेगा. आफ्टर दैट यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ पे आपको 0 मिल गया. यहाँ पे 1 1 है, सो आपका आंसर में भी 1 मिला है. so likewise we are going to perform the AND operation. so bitwise AND का एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, इंटीजर a is equals to 12, b is equals to 25. ठीक है, प्रिंट अप आउटपुट परसेंटेज a and b, यानी आपने a और b पे ये AND ऑपरेशन परफॉर्म किया. तो ये AND ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी क्या कर रहा है, ये 12 का पहले इसने
बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सो यू विल गेट द आंसर 8, आपको आंसर में क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। So very simple. If both the bits are 0, your answer is 0. If one of the bits is 0, answer is 0. When both the bits are 1, your answer is 1. Okay? After that, ORing operations, bitwise OR operation. So now we will see bitwise OR operations. So in OR gate, you already know when one of the input is 1, that means your output is 1. दोनों बीट में से एक भी बीट आपका 1 है तो आपको आंसर में 1 ही मिलेगा, ठीक है। सो सेम एग्जांपल 12 और 25 है, ये दोनों में अगर मुझे ऑरिंग करना है, ये दोनों का मुझे और करना है, तो 12 का हमने पहले बाइनरी निकाला, आफ्टर दैट वी हैव फाइंड आउट द बाइनरी फॉर 25। सो दोनों का बाइनरी निकालने के बाद देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑरिंग ऑपरेशन। सो 0 1 का क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, बिकॉज वन ऑफ द इनपुट इज 1, द आउटपुट इज 1। सो 0 1 का 1, 0 0 का 0 मिलेगा, 1 0 का 1 मिलेगा, 1 1 का 1 मिलेगा, 0 1 का 1 मिलेगा, लाइकवाइज। सो द आंसर इज 29। सो हियर इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ OR। सो वी हैव two variables, a is equal to 12 and b is equal to 25. If you perform a or b पे ORing perform करते हो, so you will get answer 29. Okay. After that, bitwise XOR. So bitwise XOR, you already seen the XOR gate in digital circuits. So in XOR, if the both the inputs in opposite, it means that if one of the 0 and one input is 1, okay, that means the output is 1. Your input is both, either your both the input is in opposite, so your output should be of 1. When your both the inputs are same, your output is 0. Right? That means if your input is 0 1, output is 1. Your input is 1 0, output is 1. But your input is 0 0, answer is 0. Your input is 1 1, answer is 0. Okay. So same thing. We have two values 12 and 15. 12 and 15 का हमने बाइनरी निकाल लिया. After that, we are going to perform a XOR operation. XOR perform करना है. So 0 1 का आंसर क्या मिलेगा आपको, 1, because opposite में एक 0 एक 1 है तो आपको 1 मिलेगा, 0 0 है तो आपको 0 मिलेगा, आफ्टर दैट 1 0 है तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। 1 1 है तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जहां पे दोनों इनपुट सेम है, आंसर 0, आउटपुट 0। दोनों इनपुट आपके डिफरेंट है, आउटपुट विल बी 1। So here is one example of XOR. So integer a is equal to 12 and b is equal to 25. After that you have performed a XOR b. So you will get the answer 21. So likewise we are going to perform a bitwise XOR operation. After that, bitwise complement operator. Bitwise complement operator. It means that bitwise complement operator is a unary operator, works on only one operand. Bitwise operator is a unary operator. आपका AND है, OR है, XOR है. These are the binary operators because it will require two data. दो डेटा पे मैं एंडिंग करूंगा, दो डेटा पे हम लोग ORing करते हैं, दो डेटा का हम लोग XORing करते हैं. But if you want to find out a complement, so complement is a unary operator because it will work on a single operand. ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट करना है तो आपको सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करना पड़ेगा, सिंगल वैल्यू का आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो। सो सपोज कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है, जहां 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 आएगा। जहां जिसको आप नॉट गेट बोलते हो, नॉट गेट क्या करता है, अगर आप इनपुट 0 दोगे तो आपको 1 मिलेगा, आप इनपुट 1 दोगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। दैट मींस बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। सो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन जो होगा, तो अगर आपका इनपुट 0 है, यू विल गेट वैल्यू आउटपुट एज अ 1। अगर आपका इनपुट 1 है, दैट मींस यू विल गेट द आउटपुट एज अ 0। सो हियर इज वन एग्जांपल, 35 का हमने बाइनरी निकाला 0 0 1 0 0 0 1 1 इन बाइनरी। नाउ वी विल परफॉर्म अ बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। सो ये टिल्ड सिंबल, ये जो आपका सिंबल है टिल्ड सिंबल, व्हिच इज अवेलेबल ऑन योर कीबोर्ड, व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्स। सो इफ यू विल पुट टिल्ड सिंबल इन फ्रंट ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल, सो टिल्ड, इसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 का क्या होगा, 0 होगा, 1 रिप्लेस बाय 0, 0 रिप्लेस बाय 1, 0 रिप्लेस बाय 1, लाइकवाइज यू विल गेट द आउटपुट, ठीक है। बट इफ यू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नोन एज द वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 1 is converted into 0 and 0 is converted into 1, known as ones complement. But there is a twist in bitwise complements. There is a twist in bitwise complement operator in C programming. The bitwise complement of 35 का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, यू विल गेट अ -36 इंस्टेड ऑफ
220। ठीक है, अगर आपने 1 का 0 किया, 0 का 1 किया, ये आपका 35 था, इसका आउटपुट जब आया तो ये आएगा आपका 220। बट ये 220 आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ। बट जब आप किसी पर्टिकुलर डेटा का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, कि कोई बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर आप आपके डेटा पे यूज करते हो, सो ऑलवेज योर आंसर इन द टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, योर आंसर विल बी ऑलवेज इन द टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। दैट मींस यहां पे देयर इज अ ट्विस्ट in bitwise complement operator in C programming. So the bitwise complement of 35 is minus 36। आपका कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए, माइनस 36 आना चाहिए। लेकिन हमने जब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया, सो यू विल गेट आंसर 220। आपका ये जो आंसर आया, ये किसका वैल्यू, इसका डेसिमल वैल्यू आएगा 220। ये डेसिमल वैल्यू क्या है इसका, 220 है। ठीक है, सो टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपको जो भी डेटा है, पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है क्या, ये जो हमने यहाँ पे किया। सो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है? सो पहले जो भी डेटा है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, दैट मींस 0 का 1, 1 का 0, हमने ये कर दिया। ठीक है, फिर उसमें +1 ऐड करो, फिर उसमें आप 1 को ऐड करो, तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज नथिंग बट अ टूज कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नथिंग बट अ टूज कॉम्प्लीमेंट। सो फॉर एनी इंटीजर ऑफ n, आपका कोई भी एक इंटीजर n वैल्यू है, सो बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ n विल बी ऑफ -n+1, -n+1। दैट मींस आप पहले जो भी n वैल्यू है उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालो। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मींस 0 रिप्लेस बाय 1 एंड 1 रिप्लेस बाय 0। ठीक है, फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट में क्या करोगे, सिंपली 1 उसमें ऐड करोगे। जो भी डेटा है, जैसे यहाँ पे 220 आया, तो 220 का जो भी बाइनरी है उसमें मैं 1 ऐड करूंगा। 1 ऐड करने के बाद वी विल गेट द आंसर -36। फिर हमें आंसर क्या मिलेगा, -36 मिलेगा। हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट से आंसर क्या मिला, 220 मिला। 220 मिलने के बाद उसमें फर्स्ट 1 ऐड करो। ठीक है, ये जो भी बाइनरी आया उसमें 1 ऐड करो। ऐड करने के बाद आपको आंसर जो मिलेगा दैट इज -36, दैट इज द सेकंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, so likewise we are going to use a bitwise operator. So here is the examples, here is the example। 0 का बाइनरी 000 है, टूज कॉम्प्लीमेंट इसका क्या आएगा, ऑल जीरोस रिप्लेस बाय ऑल वंस। ठीक है, और उसमें फिर हमने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो टूज कॉम्प्लीमेंट आया। टूज कॉम्प्लीमेंट आने के बाद इसका आंसर क्या हुआ, -0 हुआ। ठीक है, सो वैसे ही 1 का डेसिमल 1 है, डेसिमल 1 का आपका बाइनरी ये हुआ। इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जब करोगे तो यू विल गेट आंसर दिस वन, ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसमें 1 ऐड कर दिया, सो आंसर इज दिस वन। सो आपको 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट आपको मिला -256। So these are the different examples। Okay, so this is one of the program। so printf output percentage -35 का आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला है, एंड -12 का आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला। इसके सामने आपने क्या लिखा दिया, क्या लिख दिया, इसके सामने आपने टिल्ड सिंबल दिया। टिल्ड सिंबल का मतलब होता है इट इज अ बिटवाइज ऑपरेटर, इट इज अ बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। सो 35 का आपने बिटवाइज निकाला, और इसका आपने क्या कर दिया, परसेंट डिटेक्ट, इसका इंटीजर वैल्यू आपने प्रिंट किया। दैट इज 35 का आपका कॉम्प्लीमेंट आता है -36, और -12 का कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका 11। ओके, सो लाइकवाइज वी हैव टू यूज द bitwise operator। Now again we will use right shift operator and left shift operator। Till time we have seen AND operator, bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR and bitwise complement। Okay, now we will see right shift operator and left shift operator। Okay, so right shift operator which is indicated by this symbol, right shift, ये वाला जो सिंबल है 2 बार ग्रेटर देन सिंबल। ठीक है, so that operator is called as right shift operator। suppose if you have a value 212, 212 एक आपका डेसिमल वैल्यू है, इसका आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, ये आपका बाइनरी वैल्यू आ गया 11010100। नाउ यू हैव अप्लाइड अ राइट शिफ्ट ऑपरेटर, आपने लिखा 212 राइट शिफ्ट बाय 2। ये 212 एक आपका डेसिमल वैल्यू है, इसका बाइनरी वैल्यू क्या है, ये आपका बाइनरी वैल्यू। इसको आपको कितने से शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट कितने से करना है, 2 से करना है। यहाँ पे आपने 2 लिखा है, दैट मीन्स राइट शिफ्ट बाय 2। ठीक है, सो ये आपका बाइनरी है, इसको अगर आप राइट शिफ्ट करते हो, ये आपका बाइनरी वैल्यू है, राइट शिफ्ट करना है ना, ये आपका राइट शिफ्ट है। ठीक है, यहां से आप पहले बार शिफ्ट करोगे, राइट शिफ्ट करना है आपको, इधर शिफ्ट करना, राइट शिफ्ट करना। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप राइट शिफ्ट करते हो, नाउ हियर 212 is your decimal value। after that 212 का डेसिमल आया 11010100। आपने लिखा 212 राइट शिफ्ट बाय
2, ठीक है, राइट शिफ्ट बाय 2, इट मींस दैट इसको अगर आप राइट शिफ्ट करते हो, ठीक है, राइट शिफ्ट यानी इधर शिफ्ट करना है आपको, सो आपका राइट शिफ्ट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 यहां से निकल के कहां पे अपेंड होगा, यहाँ पे, यानी एक बार आपका शिफ्ट हो गया, ठीक है, एक बार आपका शिफ्ट हो गया तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0 1 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अगेन सेकेंड टाइम शिफ्ट करोगे तो सेकेंड 0 आपका क्या हो जाएगा, इधर अपेंड हो जाएगा, दैट मीन्स यहां पे आपके 2 0 ऐड हो जाएगा। शिफ्ट करना है आपका, एक ये बाइनरी है 1 1 0 1 0 1 1 0 0, ठीक है, ये आपका बाइनरी है, ठीक है। अगर आपको राइट शिफ्ट करना है, ठीक है, सो 212 इट इज योर डेसिमल वैल्यू, 212 का आपने यहाँ पे बाइनरी निकाल लिया, ये आपका बाइनरी है, ठीक है। नाउ यू वांट टू परफॉर्म अ राइट शिफ्ट ऑपरेटर, यू वांट टू अप्लाई राइट शिफ्ट ऑपरेटर बाय 2, सो 212 राइट शिफ्ट बाय 2, ठीक है। सो राइट शिफ्ट करना है, दैट मीन्स ये आपका यहाँ पे आपका एक्चुअल वैल्यू है, दैट मीन्स यहां से आपको 2 डिजिट राइट शिफ्ट करना है, दैट मीन्स यहां से पहला डिजिट उठेगा, यहां पे आएगा, यानी ये फर्स्ट एक बार शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स एक बार शिफ्ट हुआ तो आपका आंसर आया 0 1 1 0 1 0 1 0, ठीक है, यानी आपका ये 0 उठ के कहां पे चले गया, यहां पे चले गया। नाउ अगेन एक बार शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 से शिफ्ट करना है तो आपका फिर से सेकेंड डिजिट उठेगा, फिर से यहां पे पुट हो जाएगा, दैट मीन्स ये लास्ट के जो 2 डिजिट है, लास्ट के जो 2 डिजिट है, लास्ट का जो 2 बाइनरी वैल्यूज है वो आके यहाँ पे अपडेट हो गया। देखिए आपका वैल्यू था 1 1 0 1 0 1 0 0, तो राइट शिफ्ट बाय 2, सो लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, आपके कहां पे अपेंड हो गए, यहाँ पे अपेंड हो गए। आपने अगर बोला रहता 3 से शिफ्ट करना है तो लास्ट के यानी 1 0 0 उठ के कहां पे आएगा, पहले 0 शिफ्ट होगा, फिर 0 शिफ्ट होगा, फिर 1 शिफ्ट होगा। आपने बोला 4 से शिफ्ट करना है तो लास्ट के 4 डिजिट आपको शिफ्ट करना है, तो पहले 0 जाएगा इधर, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, लाइक वाइज, ठीक है। सो गॉट इट। Suppose if you have written 212 right shift by 0, so there is no shift, है ना, 0 लिखा हुआ है, दैट मीन शिफ्टिंग होगा क्या, नहीं होगा, दैट मीन्स राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अभी लेफ्ट शिफ्ट यानी राइट से शिफ्टिंग करना, इधर से इधर जाना, राइट टू लेफ्ट जाना, ठीक है, दैट मीन्स राइट शिफ्ट ऑपरेटर। आफ्टर दैट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होगा फिर, सो राइट शिफ्ट में क्या होगा कि आपके जो राइट हैंड साइड्स के जो भी डिजिट्स है आपके इधर लेफ्ट हैंड साइड में अपेंड होते जाएंगे, और लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा फिर, लेफ्ट हैंड साइड के जो भी डिजिट्स है आपके राइट हैंड साइड में शिफ्ट होते जाएंगे। नाउ सी हियर वी विल यूज अ लेफ्ट शिफ्ट सिंबल, दिस वन, 2 बार लेस देन सिंबल आप यूज करते हो। सपोज 212 इट इज वन ऑफ द वैल्यू, उसका आपने बाइनरी निकाल लिया, आपने लिखा 212 लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, 212 left shift by 1, it means that see यहां पे दिस इज योर बाइनरी, अभी लेफ्ट शिफ्ट करना है, आपने राइट में क्या किया था, राइट के जो भी बाइनरी डिजिट्स है आपने उसको लेफ्ट में शिफ्ट किया, राइट शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट के लेफ्ट में, दैट मीन्स यहां से आपने शिफ्टिंग स्टार्ट किया, इधर गया, ठीक है। अभी लेफ्ट शिफ्ट में क्या करना पड़ेगा, इधर से इधर, दैट मीन्स यहां से ये वाले डिजिट्स को आपको इधर शिफ्ट करना है, लाइक दिस, ठीक है, दैट मीन्स 212 लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, ठीक है। सो आपका क्या होगा कि यहाँ का जो 1 है, ठीक है, यहाँ का 1 लेफ्ट बाय 1 बोले तो यहाँ का 1 आपका कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा। देयर इज वन मिस्टेक, यहाँ पे जो ये है यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 आएगा, ठीक है। सो दिस ऑल, after that 212 left shift by 0 तो there is no shift, after that 212 left shift by 4, ठीक है। सो आपको आपका जो भी डेटा है वो 4 से आपको शिफ्ट करना है, 4 डिजिट से आपको शिफ्ट करना है। सो राइट शिफ्ट में क्या होगा कि आपके राइट के बिट लेफ्ट में जाएंगे, और लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा कि आपके लेफ्ट रोटेशन ऐसे होगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएगा। सो लाइकवाइज वी हैव टू यूज अ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड so likewise we are going to use a right shift and left shift operator, that means आपका right shift में क्या होगा, we have to use this symbol for shifting the digits by in a right direction, that means right shift, okay, one your digits, or we can say your bits, instead of digits we can say bits, your bit will get shifted by right side,
ठीक है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, एंड यू हैव टू गिव अ वन न्यूमेरिक वैल्यू, कितने से आपको पर्टिकुलर डेटा को राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। वैसे सिमिलरली हैपन विद लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स आल्सो, सो हाउ मेनी बिट्स यू वांट टू शिफ्ट using the left shift operator. So likewise we are going to use the left shift as well as the right shift operators. Now this is one of the example of left shift operator and right shift operator. So there is an 212 which is stored in the num variable. After that we have written one for loop, so right shift by percentage one num. So here is the example, num में आपने 212 stored कर दिया. After that I0 I less than 2 I plus I. After that right shift by 2. So what you did, num right shift by 2, ठीक है. What is the value of I का वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट टाइम आप 0 से शिफ्ट करोगे, देन I वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यू हैव टू शिफ्ट द वैल्यू ऑफ नम बाई 1, फिर I इक्वल टू 2 होगा तो आप 2 से शिफ्ट करोगे, ठीक है. आपने लूप के अंदर डाला हुआ, ठीक है. और कितने से शिफ्ट करना है, तो I से शिफ्ट करना है, तो I का वैल्यू क्या होगा, I पहले 0 होगा, देन 1 होगा, देन 2 होगा, तो इतने डिजिट्स आपकी क्या होती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी. वैसे ही आपने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है. So again, the value will be shifted by according to I. When I is 0, so your value will be shifted by 1. When 0. When I is equal to 1, so your value will be shifted by 1. ठीक है. So value is nothing but your bits. इसमें bits से आपका डेटा क्या होगा, shift होते रहेगा. ठीक है. So now we will see the enumerated data type. So enumerated data type क्या होता है? Hope everybody got the bitwise operator. Everybody understood what is the bitwise operator. Now we'll see what is the enumerated data type. I will tell you in short. So enumerated data type is a user-defined data type. Like we have already studied about the structure, union. So structure and union, these are the user-defined data type. Likewise, enumeration is also a user-defined data type in C language. It is used to assign a name to the integral constant. Basically, enumerated data type are used to give a name to the integral constant. Okay, so enum is a keyword which is used to declare a enumerated data type. Enumerated data type कैसे declare किया जाता है? So enum is a keyword like structure का हम लोग struct use करते हैं. Union declare करना है, union use करते हैं. So likewise we have to use a enum to declare the enumerated data type. So there is a some simple example in enum flag is a enumerated data type. After that, constant 1, constant 2, constant 3, you can use n number of constant values over here. You can give n number of variable names over here. Okay, so by default const 1 is a 0 value, const 2 is a 1 value. That means यहाँ पे ये curly brace में आप जितने भी identifiers के नाम देते हो, ठीक है, so every identifier is initialized with or it is associated with one by default value. That means आपका ये constant 1 ये by default इसका वैल्यू रहता है 0, इसका वैल्यू रहेगा, अगर इसका 0 तो ये बट ऑब्वियसली इसका 1 रहेगा. constant 3 का वैल्यू 2 रहेगा, constant 4 का वैल्यू 4 रहेगा. लाइकवाइज यानी अगर आपने पहला वैल्यू, सपोज आपने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया हुआ है, you haven't assigned any value to any enumerated data type, any members of enumerated data type, so it will take a by default value. That means constant 1 का by default value 0 रहेगा, constant 2 का by default value 1 रहेगा, constant 3 का by default value 2 रहेगा. लाइकवाइज लेकिन सपोज आपने constant 1 को 5 लिखा है, constant 1 को आपने डिक्लेयर करके रखा है 5, ठीक है, तो फिर constant 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, constant 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, constant 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. लाइकवाइज दैट मीन्स आपका जो भी वैल्यू आपने असाइन किया उसके नेक्स्ट इमीडिएट वैल्यू हो, नेक्स्ट इमीडिएट आपका जो भी आइडेंटिफायर या फिर जो भी आपने वहां पे इंटीग्रल कांस्टेंट लिखा हुआ है उसका वैल्यू आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल दिया हुआ है. सी वी कैन आल्सो असाइन द different values to the enumerated data members also. That means, for example, we have created one enumerated data type known as suit, SUIT suit. Under that, we are having these 4 members. Club is 0, diamond is 10, heart is 20, and spiders is 3. Spikes is 3. ठीक है, यहाँ पे ऐसे 4 मैंने आइडेंटिफाइज दिए हुए हैं जिसमें क्लब का वैल्यू 0 है, डायमंड का वैल्यू 10 है, हिट्स का वैल्यू 20 है, स्पाइक्स का वैल्यू 3 है. ठीक है, सो ऑलरेडी मैंने वैल्यू देकर रखा है. अगर वैल्यू नहीं देता था, ठीक है, तो क्लब का वैल्यू 0 है तो डायमंड का वैल्यू 1 हो जाएगा, हर्ट्स का वैल्यू 2 हो जाएगा और स्पेस का वैल्यू 3 हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अभी ऑलरेडी इनिशियलाइज किया हुआ है, सो इनिशियलाइज किया हुआ है तो इट विल टेक दैट वैल्यू ओनली.
क्लब का वैल्यू 0 है तो क्लब का वैल्यू 0 ही लेगा, डायमंड का 10 ही लेगा, ठीक है। लेकिन अगर दिया हुआ नहीं रहता तो क्लब का वैल्यू 0 है तो डायमंड का वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, हार्ट्स का वैल्यू ऑटोमेटिकली 22 हो जाएगा एंड स्पेड्स का वैल्यू ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है। सो वी कैन चेंज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑल्सो। बाय डिफॉल्ट इनम विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू, अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। Here is one of the example. We have created the enumerated of the name is Vic. ठीक है, जैसे आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो स्ट्रक्ट फॉलोड बाय द स्ट्रक्चर नेम, वैसे ही इनम इज अ कीवर्ड फॉलोड बाय इनम नेम इज वीक, ठीक है। वीक इज अ इनम नेम। आफ्टर दैट वीक के अंदर मैंने लिखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई इनिशियलाइजेशन दिया है क्या? नहीं दिया है। इनिशियलाइजेशन नहीं दिया, दैट मींस बाय डिफॉल्ट संडे का वैल्यू क्या हुआ? 0 हुआ। मंडे का वैल्यू क्या हुआ? 1 हुआ। ट्यूसडे इज 2, वेडनेसडे इज 3, थर्सडे इज 4, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6, सैटरडे इज 6। कुछ नहीं दिया है इसलिए ऐसा है। अगर कुछ दिया होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा संडे का वैल्यू 5, मान के चलते हैं कि मैं इफ आई हैव गिवन संडे इज इक्वल टू 5, आई हैव डिक्लेयर्ड संडे एज अ 5, संडे 5 हुआ तो मंडे क्या होगा? 6, ट्यूसडे क्या होगा? 7, वेडनेसडे क्या होगा? 8, थर्सडे क्या होगा? 9, लाइकवाइज। यानी जो वैल्यू आपने फर्स्ट इनिशियलाइज किया है उसके जितने भी प्रीसीडिंग्स, जितने भी आपके आइडेंटिफायर्स हो गए, अभी जितने भी मेंबर्स हो गए, उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यूज आपने कुछ भी असाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करेगा। जैसे संडे का वैल्यू 0 है, मंडे का 1 हो जाएगा, तो फिर ट्यूसडे का 2 हो जाएगा, लाइक सो इनम इज इक्वल टू वीक का टुडे मैंने क्रिएट किया। सो टुडे इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप वीक, और वीक क्या है? वीक एक इन्यूमरेटेड डेटा टाइप है, ठीक है। सो मैंने लिखा टुडे इज इक्वल टू वेडनेसडे, टुडे इज इक्वल टू वेडनेसडे। सो वेडनेसडे का वैल्यू कितना है? वेडनेसडे का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है? 3 है। सो टुडे का वैल्यू कितना होगा? 3। सो मैंने एक वैल्यू प्रिंट कर दिया। तो डे परसेंट डी, टुडे, टुडे का वैल्यू कितना आया? वेडनेसडे यानी कितना है? वेडनेसडे का वैल्यू 3 है, 3 इज स्टोर्ड इनटू द टुडे। सो टुडे का वैल्यू कितना हुआ? 3, 3 प्लस 1 4, सो आंसर विल गेट 4। सो आंसर क्या आएगा? 4। तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा? डे 4, ठीक है। गॉट इट। सो likewise we are going to use a enumerated data type. So enumerated data type is a enumeration is a user defined data type. Okay, got it. Hope everybody understood the concept of enumerated data type and bitwise operators. Okay, so thank you everyone, thank you.